Hello students, in the last lecture we finished the first part of chapter 3, that is his first flight. In today's lecture we are going to discuss the second part of third chapter, that is the black aeroplane. Please go to page number 37. Page 37, the black aeroplane. Now students, before we start this lecture, I would like to tell you something about a place in the world called the Bermuda Triangle. Bermuda Triangle, it is one of the most mysterious places in the world, where people have seen the things which are beyond normal. Students, I will tell you about a real incident. Once there was a plane which was flying from London to Boston. Boston, it is somewhere north of New York, USA. When the plane was flying, it flew over the area of the Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle, it is located between Florida, Boston and Bermuda Islands. ये एक सी के बीच में एक ट्राइंगल बनता है. एक तरफ फ्लोरिडा सिटी है, एक तरफ न्यूयॉर्क और बॉस्टन है, एंड एक तरफ बर्मुडा है, आइलैंड्स. ये प्लेन की हिस्ट्री ऐसी थी कि ये प्लेन जब उड़ रहा था, सडनली इट लॉस्ट ऑल द कंट्रोल्स. इट वॉज नॉट सीन ऑफ द रेडार. नीचे जो ग्राउंड कंट्रोल रेडार्स होते हैं उसमें भी नहीं दिखाई दे रहा था. पायलट को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. उसके सारे कंट्रोल्स ब्लैंक हो गए. इन 11 minutes again the controls came back automatically. The controls came back automatically in 11 minutes. The pilot could see an airport in front of him. And the pilot inquired where he was. And to his surprise, students, the pilot came to know that he has flown a distance of 500 kilometers in those 11 minutes. It was impossible. A plane can fly a distance of 500 or 600 kilometers in 1 hour. But this plane flew 500 or 600 kilometer distance in 11 minutes. And what I am saying is not a fictional story, students. ये मैं कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं सुना रहा हूं. ये एक रियल स्टोरी है. And you can find out more about this from Google or from YouTube also. You can search in YouTube or in Google the plane which flew at a fast speed in the Bermuda Triangle, and you will get the result. They crossed that entire sea, that Atlantic Ocean का जो वो एरिया है Bermuda Triangle का. It is a triangle of over 500 kilometers, and they crossed that in exactly 11 minutes. How? How did they do that? It is still a mystery which nobody can explain. Thankfully, the plane was of such an advanced technology, and the pilot was very good. That is why the plane was not broken to pieces. Everyone was lucky to survive. But the passengers also said that they experienced massive turbulence, shaking, because the plane was flying at a speed which was 6 times its normal speed. So you can experience the kind of force it was experiencing.
right? Any plane could split apart in the mid sky. So this was about a mysterious place called Bermuda Triangle. Students, the story I have explained to you right now, it has nothing to do with this chapter, but this chapter is based on that story. It is not the same thing, but in this chapter, the story of this chapter is based on this incident. That is why I had to tell you about this incident first. Correct? So, let's get started with the chapter, The Black Aeroplane. Go to page number 37 स्टूडेंट्स, द ब्लैक एरोप्लेन. अब ये पायलट ने खुद नरेट किया है, यहां पे नरेटर खुद पायलट है. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. The moon was coming up in the east behind me. That means that the pilot is going westwards. Pilot west की तरफ जा रहा है. So the moon is in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Students, countryside. Here it means over the रूरल एरिया, राइट? तो ये जो है रूरल एरियाज इन यूरोप आर कॉल्ड कंट्री साइड. ठीक है? जो रूरल एरियाज होते हैं यूरोप में उनको कंट्री साइड बोलते हैं. हम लोग कंट्री किसको बोलते हैं? पूरे देश को, इंडिया को. लेकिन ये एशिया में बोला जाता है स्टूडेंट्स. एशिया में कंट्री मतलब देश. ठीक है? यूरोप में कंट्री को वो विलेजेस को कंट्री बोलते हैं, मतलब रूरल एरियाज को कंट्री बोलते हैं, और देश को वो लोग नेशन बोलते हैं. नेशन. ठीक है? तो यहां पे कंट्री साइड इन दिस चैप्टर इट मीन्स ओवर द रूरल एरिया, मतलब वो विलेजेस के ऊपर से फ्लाई हो रहा है. सो आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. ये क्या होता है ओल्ड डेकोटा? इट इज अ single pilot aeroplane of olden times. Olden times मतलब एकदम पुराने जमाना नहीं, आप समझ लो थोड़ा ऐसे 25-30 इयर्स पहले का, बराबर. एंड इसका जो एवरेज स्पीड है ये हमारी आज की मोटर कार की स्पीड है, अबाउट 120 किलोमीटर पर आवर.
स्लो फ्लाइंग प्लेन, छोटा प्लेन धीरे धीरे आसमान में उड़ता है, इसका एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर और ये ओल्डन टाइम्स का सिंगल पायलट एरोप्लेन है। आप ये पीछे के पेज पर देख सकते हो इसका प्लेन, इधर पीछे ऑन पेज नंबर 39 यू कैन सी द प्लेन डेकोटा, छोटा सा प्लेन है, ठीक है। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. 1:30 in the morning मतलब रात के 1:30 बजे। लेकिन प्लेन्स में पायलट्स क्या करते हैं, रात को मिडनाइट हो जाए ना उसके बाद उस टाइम को मॉर्निंग रेफर करते हैं। सो दैट इज वाई रात के 1:30 बजे ये 1:30 इन द मॉर्निंग बोलते हैं, बिकॉज इट इज आफ्टर 12 o'clock मिडनाइट। सो आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, वो अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा है, इंग्लैंड में उसकी फैमिली है उसके साथ रीयूनाइट करने के बारे में सोच रहा है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। एज आई लुक डाउन past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. तो ये DS088 क्या है? It indicates the name of plane. The narrator is flying Dakota DS088. हर एक प्लेन का एक कोड होता है, जब वो फ्लाई करता है तो वो कोड जो है वो कंट्रोल टावर को बताना पड़ता है। नीचे जो कंट्रोल टावर में बैठे लोग होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं ये प्लेन हूं, मेरा ये कोड है, मैं आपके सिटी के ऊपर से फ्लाई कर रहा हूं। एंड इफ दे से यस इट इज आइडेंटिफाइड देन दे कैन गो। पायलट्स का ऐसा नहीं होता है प्लेन को जहां लेके जाओ ले जाओ, हाँ, अपने बाइक की तरह नहीं कि बाइक चलाए और सीधे कहीं पे भी चले जाओ, हाँ, ऐसा नहीं होता है पायलट्स में। पायलट्स को परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। ये एक ट्रांसमिशन चैनल है तो इसमें बोथ वे टॉक होता है, तो जब तक ओवर नहीं बोलेंगे तब तक सामने वाला बात नहीं करेगा। तो इसने अपनी बात कह दी पेरिस कंट्रोल से, दैट ही वॉज डेकोटा DS088। कैन यू हियर मी? वो पूछ रहा है उनसे। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो रेडियो कंट्रोल से आवाज आई, DS088, आई कैन हियर यू, you ought to turn 12 degrees west now, DS088, over. You ought to turn मतलब you should turn 12 degrees west, ये उसको कंपास का एंगल बताया, 12 degrees towards the western direction, towards England. I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going on well and it was an easy flight. बराबर। अभी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में अप्रोक्सीमेटली अबाउट ये पेरिस टू लंदन के बीच में 400 to 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है पेरिस टू लंदन के बीच में, अप्रोक्सीमेटली आई एम से, नॉट एग्जैक्ट। ये डिस्टेंस यूजुअली कोई भी प्लेन 1 घंटे में कवर कर सकता है, लेकिन इसका प्लेन जो है, बिकॉज इट इज एन ओल्ड डेकोटा प्लेन, इट इज अ स्लोअर प्लेन, सो इट विल प्रोबेबली टेक द होल नाइट। दैट इज वाई ये इंग्लैंड में अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही पहुंच पाएगा। वैसे रात को 1:30 कोई प्लेन पेरिस से टेक ऑफ हो तो विद इन एन आवर वो लंदन में लैंड भी हो जाता है।
1 या 1.5 घंटा तो बहुत हो गया लैंड करने में पेरिस टू लंदन, लेकिन इसका प्लेन उससे कई ज्यादा टाइम लेगा, मिनिमम 5 to 6 आवर्स तो लेगा ही, क्योंकि इट इज अ स्लो काइंड ऑफ प्लेन. बट एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन वेल. द पायलट रिलैक्स्ड. ठीक है, सुबह तक पहुंच जाऊंगा आराम से, फ्लाइट का मजा लेना है, नाइट फ्लाइट है, कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं, क्लाउड्स नहीं, स्काई इज क्लियर, सो वेदर इज क्लियर एंड यू कैन गो थ्रू. Paris was 150 kilometers behind me when I saw the clouds. The storm clouds. This is the worst thing the pilot has to face. The storm clouds. They were huge. Huge storm clouds. बड़े बड़े पहाड़ जैसे. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. The clouds looked like black mountains. जैसे बड़े बड़े पहाड़, काले काले रंग के पहाड़ किसी ने उसके फ्लाई पाथ में रख दिए हो, लेकिन ये क्लाउड्स इतने घने थे that they looked like mountains. I knew I could not fly up over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or to the south. So students, pilot is going westwards. अब वेस्ट की तरफ जा रहा है पायलट, तो ये सोच रहा है कि क्लाउड्स है सामने, अब ना तो उसके पास इतनी एनर्जी है एयरक्राफ्ट में कि वो क्लाउड्स के एकदम ऊपर से जाए, इतना एनर्जी उसका प्लेन अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना ऊपर नहीं जा पाएगा. ऑल्सो साइड्स में से भी नहीं जा पाएगा, नीचे से जाएगा तो लाइटनिंग का और खतरा है, और ये पुराने टाइम के प्लेन्स थे, इनमें तो 1-2 बार लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ डैमेज. छोटे प्लेन्स में ये डैमेज और ज्यादा हो सकता है अगर क्लाउड्स के नीचे से गया तो. सो नाउ द ओनली 2 ऑप्शंस आर लेफ्ट. एक ऑप्शन है टर्न बैक एंड रिटर्न टू पेरिस, विच इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन इसको ब्रेकफास्ट खाना है अभी, इंग्लिश ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ, बराबर. तो ब्रेकफास्ट की इतनी लालच है, फैमिली के पास पहुंचना है, फैमिली के पास पहुंचना है, उस चक्कर में रिस्क ले लिया. He takes the risk of flying into the storm. अब तो भगवान मालिक है. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have the enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought. तो सबसे पहला थॉट यही आया कि I had to turn back and go to Paris. But I wanted to get home. I wanted that breakfast. कई बार स्टूडेंट्स माइंड इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कोई चीज की वजह से कि हम जानते हुए भी रिस्क ले लेते हैं. फ्रस्ट्रेशन में आके हमें सिग्नल्स मिलती है कि हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या है, हमारा माइंड उस चीज को मानने को तैयार नहीं होता है. अरे यार अभी यहां तक आ गए, अब फिर वापस जाओ, इतनी देर में तो ये स्टॉर्म क्लाउड्स क्लियर कर जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, इतने सालों से फ्लाई कर रहा हूं, ये भी हो जाएगा. सो ही टेक्स द रिस्क. आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. Everything was suddenly black.
तो यहां पे इस फ्रेज का मीनिंग है all controls were off and there was no visibility. उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जीरो विजिबिलिटी थी, सारे कंट्रोल्स ऑफ हो चुके थे. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. Jumped and twisted. Means vibrated violently. बहुत ज्यादा धड़ 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 ऐसे वायोलेंटली वाइब्रेट होने लगा प्लेन, क्योंकि ये इस तरह से हो रहा था. सो आई लुक्ड एट द कंपास. कंपास आपको पता है, डिवाइस विच शोज द डायरेक्शन. ये मैग्नेटिक कंपास है, साइंस में आपने पढ़ा होगा. इट शोज द डायरेक्शंस. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round. अब इसके दो मतलब होते हैं स्टूडेंट्स. या तो प्लेन गोल गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, या फिर कंपास बिगड़ गया है. अब पायलट ने थोड़ा खुद को महसूस किया कि भाई भले वाइब्रेशंस हो रहे हैं लेकिन प्लेन गोल गोल रोटेट तो नहीं कर रहा है. इतना तो समझ में आ रहा है उसको. दैट मीन्स कंपास खराब हो गया है. सो दैट इज अ सेफर साइड. कंपास बिगड़े चले, कंपास सही हो, प्लेन गोल गोल घूमे, ये तो मुसीबत हो जाए. तो कंपास का गोल गोल घूमना इनिशियली उसको थोड़ा शॉक करता है, बट देन ही लुक्ड अराउंड हिमसेल्फ एंड देन ही फील्स कि ठीक है, प्लेन तो बराबर चल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है सिर्फ, लेकिन कंपास सिर्फ गोल गोल घूम रहा है. So compass was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. Other instruments. मतलब इसके सारे कंट्रोल्स, एक्सेलरेशन, ब्रेक्स, सारे कंट्रोल्स उसके, सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो गए. I tried the radio. Paris control. Can you hear me? पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश की. कैन यू हियर मी? रेडियो चालू किया. स्टिल नो आंसर. इवन द रेडियो वॉज नॉट ट्रांसमिटिंग हिज सिग्नल्स. सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस, देन वी शैल प्रोसीड फर्दर.
Let's go further, students. There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Students, he is lost. He could not see himself. There is no radio, no compass. उसको पता नहीं exactly कौन से डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट जा रहा है. वाइब्रेट होते होते कभी टर्न भी हो जाए, कभी उल्टा हो जाए, पता नहीं चलता, क्योंकि ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड. जीरो विजिबिलिटी, सब कुछ ब्लैक है. तो ब्लैक एटमॉस्फियर में कब प्लेन वाइब्रेट होके टर्न हो जाए, उल्टा हो जाए, किसी भी तरफ फ्लाई कर सकता है. ही कैन नॉट रियलाइज. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी I saw another aeroplane. अब स्टूडेंट्स यहां से ये स्टोरी थोड़ी सी फिक्शनल होती जा रही है. फिक्शनल मतलब थोड़ा दिखावा. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसे पायलट अपने आगे इतना नियर एक दूसरा प्लेन देखे और उस प्लेन के अंदर एक पायलट को देखे और दोनों पायलट एक दूसरे को हाय बोले. जैसे आप ऐसे बाइक पे जा रहे हो और ऐसे कोई आपका फ्रेंड ओवरटेक करे और आपके आगे जाके हाय बोले. ऐसा प्लेन में नहीं होता है. लेकिन चैप्टर में थोड़ा ऐसे राइटर ने, ऑथर ने इस तरह का सीन आपके सामने रखा है कि जो थोड़ा ह्यूमरस लगता है, थोड़ा फिक्शनल लगता है. So in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings. Students, हर एक प्लेन में 2 लाइट्स होती है विंग्स पे, जिससे पता चलता है पायलट्स को कि प्लेन का डायरेक्शन क्या है. बट इस प्लेन का डायरेक्शन पता नहीं चल रहा था क्योंकि इस पे लाइट्स नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storms, and I could see the pilot's face turned towards me. अंदर से पायलट का फेस दिखाई दिया इसको. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, follow me. He was saying, follow me. अब ऐसे सुनाई थोड़ी देता है प्लेन्स के अंदर बाहर की आवाजें. लेकिन अब ऑथर्स की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है. ऑथर्स और पोएट्स कुछ भी कर सकते हैं. तो यहां पे फ्रॉम द ऑथर्स पर्सपेक्टिव ये पॉसिबल है कि वो आगे जो पर्सन जा रहा है दूसरे प्लेन में, वो पायलट ने इसको वेव किया, इसको बुलाया, फॉलो मी ऐसे. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट he is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि आपके व्हीकल में लाइट नहीं है, इसलिए आपका फ्रेंड आपके आगे आगे ड्राइव कर रहा है. तो यहां पे ऐसा सिचुएशन है कि ये जो दूसरा प्लेन है वो इसको गाइडेंस दे रहा है, भाई मेरे पीछे पीछे आओ, मैं जा जाऊं ना, मेरे पीछे पीछे आओ. दोनों स्लो चल रहे हैं. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. यहां पे इसका मतलब है, ये फ्रेज है, इसका मतलब है टू फॉलो विदाउट एनी
डाउट, एक छोटे बच्चे की तरह जो विदाउट एनी डाउट एक पेरेंट को ओबे करता है, टीचर को ओबे करता है, कभी शक नहीं करता, इसी तरह से हमारा राइटर जो है वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे विदाउट एनी डाउट्स लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड फॉलो करते गया उसको। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा हो गया, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds. But now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 10 minutes more. तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा खतरा है। एक घंटे तक, आधे घंटे तक प्लेन उड़ते जा रहा है फॉर हाफ एन आवर, और वो ब्लैक एरोप्लेन भी आगे बढ़ रहा है, तूफान चालू ही है, क्लाउड्स चालू ही है, एंड अब लास्ट टैंक में फ्यूल थोड़ा सा ही बचा है। अब 10 मिनट से ज्यादा अगर प्लेन हवा में रहा तो क्रैश हो सकता है। सो नाउ द ऑथर नोट्स इट्स टाइम दैट ही शुड लैंड एंड रीफ्यूल। ये अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं नीचे एयरपोर्ट पे उतर के फिर से रीफ्यूल करवाना पड़ेगा। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. So he started to go down. Started to land. तो ब्लैक एरोप्लेन जो है वो लैंडिंग की तरफ जा रहा था, तो ये ऑथर का प्लेन भी थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाने लगा। Suddenly I came out of the clouds. And suddenly I saw 2 long straight lines in front of me. तो ये स्टूडेंट्स, ये अगेन ये जो मैंने आपको पहले स्टोरी बताई थी, जो रियल इंसिडेंट की, उसी की तरह इसके साथ हुआ है। सडनली ही फ्लू ब्लैक आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड ही कुड सी द रनवे इन फ्रंट ऑफ इट, जैसे ओरिजिनल इंसिडेंट में हुआ था। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। I turned to look back at my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. मतलब there was no plane in the sky. There was nothing there. The black aeroplane was gone. कोई black aeroplane नहीं था. I could not see it anywhere. I landed, and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. So, not sorry to walk away means he felt happy to walk away. खुशी से प्लेन से दूर चला गया, अजीब सफर से उतरा है। अब वो डेकोटा अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ, बराबर। अजीब सफर एंड हुआ, अब पड़ा रहे यहाँ पे एयरपोर्ट पे थोड़ी देर तक तो देखना भी नहीं है। एंड ही डिड नॉट फील सॉरी फॉर इट, ही जस्ट वेंट अवे फ्रॉम द प्लेन। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. इसको ऐसा लगा परहैप्स वो दूसरा पायलट मेरे से पहले लैंड हो गया होगा और उसने अपना प्लेन कहीं एयरपोर्ट पे पार्क कर दिया होगा, मुझे दिख नहीं रहा होगा। दिस इज व्हाट द ऑथर फील, बिकॉज क्योंकि स्काई में प्लेन नहीं दिख रहा है, तो अगर स्काई में प्लेन नहीं है तो जरूर उसने प्लेन कहीं ना कहीं पार्क किया होगा। लेकिन जो वो वुमन इन द कंट्रोल टावर है, शी स्ट्रेंजली लुक्स एट हिम,
अदर प्लेन? अदर प्लेन तो मैंने देखा ही नहीं रेडार पे. Yours was the only plane I saw on the radar. There was no other plane on the radar. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? अब ये सोच रहा है ऑथर कि किसने मेरी मदद की, कौन था वो जिसने मेरी मदद की. Without a compass, without a radio, without any more fuel in my tanks, कौन था, कौन वो पायलट था उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का जो स्टॉर्म में विदाउट फ्लाइट्स उड़ रहा था और इसको ऐसा लग रहा है वो सिर्फ मेरे लिए उड़ रहा था. ऐसा कौन था? लेकिन ये चैप्टर भी ऑन अ मिस्टीरियस नोट एंड होता है. सो दिस एंडिंग ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो मैचिंग विद द एंडिंग ऑफ द रियल स्टोरी दैट आई टोल्ड यू, कि जिसमें आज तक पता नहीं चला कि ये चीजें कैसे हुई. उस रियल स्टोरी में भी आज तक वो उसकी मिस्ट्री पता नहीं चल पाई है. एंड इन द सेम वे इस स्टोरी में भी इसको पता नहीं चल पाया है. सो प्लीज नोट डाउन दीज मीनिंग्स. Now let's discuss the question answers, students. On the next page, thinking about the text, page number 40. I will take the risk. What is the risk? And why does the narrator takes it? The risk the narrator takes is flying through the storm. And why does he take this risk? He takes the risk because he dreams of joining his family for English breakfast. Correct? Answer 2. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. तो क्या चीजें हुई थी स्टूडेंट्स? तो ये आंसर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, इसके की पॉइंट्स मैं बता देता हूं. ये डिस्क्रिप्टिव आंसर है, आपको खुद से लिखना है. पहली चीज जो हुई वो थी कि एवरीथिंग टर्न्ड ब्लैक
बराबर. Secondly, he lost his radio control. All instruments were dead. There was no visibility, and his compass was also dead. Correct? Please note down this answer. सेकेंड आंसर में स्टूडेंट्स पूरा आंसर नहीं है, सिर्फ की पॉइंट्स है. यू हैव टू डेवलप योर आंसर एंड राइट इट इन अ पैराग्राफ. ओके, फ्रॉम दीज की पॉइंट्स. Answer 3. Why did the narrator say that he was not sorry? So इसके की points है. सबसे पहले he had a worst experience as a pilot. And secondly, he had flown without compass, instruments and radio. He had flown with low fuel and nearly crashed his old Dakota. He survived only due to pilot of black aeroplane. And so he said, then it is from the question. तो ये की पॉइंट्स है, इसके ऊपर से आंसर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. The narrator had the worst experience as the pilot. He had flown without compass, instruments and radio in the storm. He had flown with low fuel and nearly crashed his old Dakota. Almost crash हो गया था प्लेन उसका. He survived only due to the pilot of the black aeroplane, and that is why he says after landing that he was happy to go away from the old Dakota. What made the woman in the control center look at the stranger narrator strangely? When the narrator said that he wanted to know about the pilot of the black aeroplane,
The woman at the control center laughed strangely because she did not see any other aeroplane on the radar except the narrator's old Dakota. So this is the fourth answer. When the narrator said that he wanted to know about the pilot of the black aeroplane, the woman at the control center laughed strangely because she did not see any other plane on the radar except the narrator's Dakota. So please note down these two answers, students. Students, answer 5 is omitted because this type of question will not be asked. It is written, discuss with your friends who saved the pilot actually. So this kind of question will not be asked. So please omit this question. So students, we are at the end of this lecture. We have discussed the question answers of this chapter. In the next lecture, we will discuss the chapter 3 poem. Right? Till then, goodbye students.